Hi friends, today we will discuss IPv6 part 1 topic for CCNA classes. Today this is day 1. Let's start. Today we will cover hexadecimal by IPv6, basic of IPv6 and configuring IPv6 addresses. Okay. हेक्साडेसिमल हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि IPv6 addresses are hexadecimal based addresses. Okay, that's why we are using here. आप देख सकते हो डेसिमल start from 0 and goes up to 15. Hexadecimal start from 0 and goes up to 9, then convert to hexadecimal. A B C D F only, it goes up to only F. Point to note it this. Okay, when you convert 0 to 9, hexadecimal will be same, 0 to 9. When decimal start from 10, then it start 10 convert to A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. Okay, and these are the binary conversion. That's why. Okay, uh, main reason why we require IPv6 addresses, because the main reason is that there simply are not enough IPv4 addresses available. Okay, there are 4294967 2 raised to power 32 IPv4 addresses available only. When you will see IPv6 addresses, there are many more. I will show you. Next slide. When IPv6 was created 30 years ago, the creator had no idea the internet would be as large as it today. Okay, so by reducing the wastage of IPv4 addresses, different technique, VLSM, variable length subnetting, okay, net for net for okay for IPv4 address space, so we can reduce the wastage, okay, for IPv4. But these are not short-term solutions. These are not long-term. So long-term solution only is IPv6. Okay, IPv4 addresses assigned and are controlled by INA, Internet Assigned Number Authority. INA distribute IPv4 addresses or IPv6 addresses to different regional internet registries, which then assign them to company that needed them. Means regional internet registry means this is a Afrinic. You can see here. These are Africa part. Ethnic. Okay. Aaron, Lechnic, and RIP, NCC. This is I think Europe, and this is Africa. African. This is Asia Pacific. Okay, and this is I think US and Caribbean, and this is Canada, I think. Okay, so we have different regional internet registries. Okay, so क्या होता है basically ईना डिस्ट्रीब्यूट किसको करती है, रीड को करती है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री को करती है एड्रेसेस, IPv4 हो या IPv6 हो। उसके बाद रीड किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ISP को करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को करता है। ISP क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है आगे एंटरप्राइजेस को, होम्स को, आगे डिफरेंट तरीके से। ओके, वाई IPv6 एड्रेसेस कितने बिट का होता है, 128 बिट्स का होता है। ओके, IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है। For the bit of an IPv4 addresses for the number of possible addresses, ऐसा नहीं है। Okay. Every additional bit double the number of possible addresses. As you can see here, we have lot of IPv6 addresses, and when you will see
IPv4 addresses, these are very small. Example, IPv6 addresses in binary like that. Then we convert into like that. But this is not a standard. Standard is what? Then we will convert into hexadecimal, like that. So total, how many block will come? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 block. Okay. And every block have 16 digit. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. 16 8 is 128 bits. Okay. Every quarters have 16 bits. Okay. And every bit have 4 bits. 4, 4, 4, 4, 16 come. That's why 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 into multiply by 8. Then answer come 128 bits. Okay. Shortening of IPv6 addresses. सबसे पहले क्या करते हैं? लीडिंग जीरो कैन बी रिमूव. जो जीरो होती है लीडिंग उनको रिमूव कर दीजिए. जैसे ये 2001 है. लीडिंग जीरो हटा दिया हमसे. देखो यहाँ से भी हटा दिए, यहाँ से भी हटा दिए. ये ऐसे कैसे रहने दिया है? लीडिंग जीरो हटा दिया से, यहाँ से भी. सेकंड मैटर होता है कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ ऑल जीरो कैन बी रिप्लेस विद डबल कोलन. कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स होते हैं, उसको किससे रिप्लेस कर दो आप? डबल कॉलन के साथ कर दो. 2001 DB8 इसके साथ रिप्लेस कर दिया हमने डबल कॉलन. कैसे कैसे दिए? 0 हम कंबाइन कर देंगे फर्स्ट मेथड को और सेकंड मेथड. करेक्ट. लीडिंग जीरो हटा दी हमने, रिमूव कर दी, हटा दी. ये मैंने क्या बोला था आपको? 8 ब्लॉक होने चाहिए. यहाँ पे देखो कितने ब्लॉक हैं. 1 3 4. Where is 4? Here replace 4 colon by double colon. Okay. Double colon. The shortening of IPv6 addresses. Okay. Third method है consecutive quarters of zeros. Consecutive quarters of zero can only be abbreviated once in an IPv6 addresses. Okay. जो consecutive quarters आ जाते हैं जीरो के, तो उसको आप एक ही बार एब्रीविएट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है आपका 2001 कंसेक्यूटिव जीरो आया, अब आपने डबल कॉलन लगा दिया. 20A1 लिख दिया, कंसेक्यूटिव जीरो आया, आपने फिर डबल कॉलन लिख दिया. P4BD. अब द प्रॉब्लम इज टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 8 ब्लॉक होते हैं. यहाँ कितने ब्लॉक होंगे? 1 2 3. बचे कितने? 5. 5 बचे. 3 यहाँ दे तो 2 यहाँ दे, 3 यहाँ दे या फिर 2 यहाँ दे. दैट इज द प्रॉब्लम. तो हम एक बार यूज करेंगे, वो भी इस टाइप क्वेश्चन में है तो हम लेफ्ट साइड वाला पहले चूज करेंगे. जैसे 2001 डबल कॉलन 21. इस जीरो को ऐसे लिख देंगे, इस जीरो को ऐसे लिख देंगे. P4BD. ओके. ये शॉर्टनिंग ऑफ IPv6 एड्रेसेस है. आप देख लेना, ये क्वेश्चन है, आप ये आंसर है. आप आंसर को प्लीज मत देखना, खाली क्वेश्चन को देखना, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना आप. ओके. अब करेंगे एक्सपेंडेड डॉट IPv6 एड्रेसेस. ओके. तो पहले क्या करा था हमने? शॉर्ट करा था एक्सपेंड से, अब शॉर्ट से एक्सपेंड करेंगे. पुट फर्स्ट मेथड क्या है? पुट लीडिंग zeros where needed. All quarters should have 4 hexadecimal character. Okay. Every quarter should have 4 hexadecimal character. You can see example, this is the IPv6 addresses. Okay. F80 to every quarters
this is a quarter ones. It should have 4 hexadecimal, so we can write like that 0002 here 0000 0000 FB8. Okay. If a double colon is used, replace it with all 0 quadrats. Okay. डबल कॉलम भी यूज कर रखा है, उसको किसके साथ रिप्लेस कर देंगे? 0 क्वार्टर्स. मेक श्योर देयर आर 8 क्वार्टर इन टोटल. टोटल कितने क्वार्टर्स होने चाहिए? टोटल कितने ब्लॉक होने चाहिए? मींस 8 ब्लॉक होने चाहिए. here वन, यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 4 5 क्वार्टर्स ओनली, यानी कि 5 ब्लॉक है. हमें कितने चाहिए? 8 चाहिए, बट वी हैव ओनली 5. अब कैसे करेंगे? जो डबल कोलन है F8 0 0 0 0 2 0 0 FB8 कितने क्वार्टर्स हो गए? टोटल ऑफ 8 क्वार्टर्स हो गए. ओके. ये एक्सपेंडिंग शॉर्टेंड IPv6 एड्रेसेस है. क्वेश्चन यहाँ पे है आपके, ये आंसर आपको देने हैं यहाँ पे. ओके. अब करते हैं बात आईपी प्रीफिक्स, IPv6 prefix. So here we will talk about little bit, not too much, global unicast addresses. Okay. There are different type of addresses we will discuss in next video, not in this one. Okay. तो होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो भी आपका आईएसपी प्रोवाइडर है वो कितने का ब्लॉक देता है आपको? 48 ब्लॉक, 48 का ब्लॉक देता है सबसे पहले IPv6 के लिए. ओके. और जो डिफॉल्ट सबनेट मींस आईपी प्रीफिक्स की लेंथ होती है, प्रीफिक्स लेंथ होती है, वो कितनी होती है? 64 की होती है. लेस 64 ये डिफॉल्ट होती है. हम चेंज कर सकते हैं बट डिफॉल्ट ही है, आप स्टैंडर्ड है, यू कैन सी. ठीक है. दैट मींस एन एंटरप्राइज हैज 16 बिट्स टू यूज टू मेक सबनेट. 16 बिट्स किसके लिए यूज करेंगे? सबनेट के लिए यूज करेंगे. बताऊंगा कैसे यूज करेंगे, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा. द रिमेनिंग 64 बिट कैन बी यूज्ड फॉर होस्ट. जो रिमेनिंग बढ़ जाएगा कितना? 64 बिट्स. 48 प्लस 16 कितने हो गए? 54. 60 प्लस 64 128 बिट्स. ओके. तो जो 48 प्लस 16 किसमें यूज कर ली हमने? किसमें यूज करी? प्रीफिक्स बनाने के लिए, सबनेटिंग के लिए. और जो रिमेनिंग पार्ट था वो किसके लिए यूज कर लिया? होस्ट के लिए यूज कर लिया, जैसे हम IPv4 में यूज करते थे. सो बेसिकली ये देखो 2001 ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस है जो 2001 से स्टार्ट होता है हमेशा. ओके. You can see, but I will tell more in detail in next video what is global unicast and different type of addresses. Okay. Here you can see first block, first block, second block, third block. 16. Every digit have 4 bit. 4 4 4 4 16 16 16. कितने ब्लॉक हो गए? सॉरी कितने बिट हो गए? 48 बिट हो गए ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स के. ये कौन देती है? ISP देती है आपको. ओके. जो रिमेनिंग जो 16 की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, 16 बिट टू मेक सबनेट, ये सबनेट के लिए यूज होते हैं, सबनेट बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सबनेट बनाने के लिए. ओके. और ये पार्ट है जो ये वाला 1 2 3 4, ये कितनी बिट का होता है? 64 बिट का. यू कैन सी 16 16 16 16 64 बिट. ये क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेस आइडेंटिफायर बोलते हैं. द होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेस, ये क्या बोलते हैं इसको? होस्ट पोर्शन एड्रेस का. फाइंडिंग द IPv6 प्रीफिक्स, इसमें फाइंड करो. ये क्वेश्चन है 2000, ये क्वेश्चन है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो 2001 का 2001 लिख दिया हमने. we have removed leading 0 8 b 0.
लीडिंग जीरो फिर रिमूव कर, जीरो है, डबल कोलन लगा, देन 64। कल ये पार्ट देखना है, कितने बिट का होता है, 64 बिट का होता है। फाइंडिंग द IPv6 प्रीफिक्स, पे प्रीफिक्स हमने चेंज कर दी 56 बिट्स। कैसे करेंगे इसको, 16 का होता ये हो गया, 16 प्लस 16 32, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 48। अब एक बिट उठाएंगे यहाँ से, 40 प्लस 4 52, 52 प्लस 4 56। तो क्या लिख देंगे, ये सेम एज इट इज, लीडिंग जीरो वी हैव रिमूव, लीडिंग जीरो रिमूव 1। देखो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे रीजन है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो आपका डिफरेंट ही टाइप का एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। लीडिंग जीरो हटा सकते हैं, बैक एंड वाली जीरो नहीं हटा सकते। तो डबल कोलन जो ये पार्ट है, आपने इसको कैसे शो कर दिया, डबल कोलन से, ये लेस बाय 56। ओके, आप देखो ऐसे नहीं लिख सकते खाली 21, अब 0021 में नहीं लिख सकते, तो दिस इज द करेक्ट वे। अब देखो 93 आ गया, जैसे आपको पास क्वेश्चन 93 को कैसे करो, 16 16 16 16 16 कितने हो गए, 80, 80 प्लस 4 84, 84 प्लस में 4 88, 88 प्लस 4 92, देन 93 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बी पे। आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बी को, बी कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट में, बी ऐसे लिखते हैं, देखो 1248, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी में, 1011, तो बी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 9th किस में आ रहा है, 93 किस में आ रहा है, फर्स्ट उसमें आ रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट कौन सा है इसका, 8 है, तो हम क्या लिख देंगे, वी विल रिप्लेस बी विद 8। ओके, आप इस मेथड में जाना, बहुत कंफ्यूजन मेथड है, मैंने सिंपल सा लिखा है और आपको सिंपल बनाया। बी को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 8 के साथ, तो हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे 8 के साथ 2001 DB8 8B01 F89 17, बी को किसके साथ रिप्लेस करा, 8, और फिर जो पार्ट रह गया रिमेनिंग वो डबल कोलन के साथ कर दिया 93। हम खाली डबल कोलन इसको मत सोचो, हमने खाली अब इसकी बेस पे 93 की बेस पे हमने ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स निकाली है। ओके, अब फाइंडिंग द IPv6 प्रीफिक्स आप निकाल लेना, ये होस्ट एड्रेसेस है, जैसे आप उससे निकालना, ठीक है। पहले आप खाली इससे इसको देखना, होस्ट एड्रेस को, इसको मत देखना आंसर को। ओके, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, कमेंट कर देना मेरे को। अब configuring IPv6 addresses, how we can configure it in packet tracers, routers, GNS3। ओके, ये आपके पास डायग्राम है सिंपल सा, आपके पास एक राउटर है और 3 स्विच है, तो ये क्या बन गया, 3 इंटरफेस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होंगे, 3 नेटवर्क होंगे, 1 नेटवर्क G0 इंटरफेस, G01 इंटरफेस, G02, all interface have same IP ::1.1। ओके, अब देखो यहाँ पे हम जब भी कोई कमांड चलाते हैं हम IPv6 अनेबल करने के लिए, तो वो ग्लोबल मोड में चलती है, ओके, ना कि इंटरफेस मोड। ओके, INT मीन्स ये इंटरफेस मोड में चल रही है कमांड, ग्लोबल मीन्स ये पूरे राउटर पे नहीं चल रही है। समझ रहे हो मैं क्या क्या कह रहा हूँ, अगर हम इस कमांड को लिखेंगे कॉन्फ़िग मोड में जाके, IPv6 unicast routing allow the router to perform IPv6 routing, कर दिया हमने भाई। ओके, तो भाई आईपी दोगे इंटरफेस पे, तो इंटरफेस G0/0। ओके, IPv6 addresses 2001 DB8 00। ओके,
डबल कोलन 1/64, नो शट डाउन। ओके, ऐसी इस इंटरफेस दोगे G0/1 पे 2001 DB801। ओके, इस पे 01 3 वाला 1 ले लेंगे डबल कोलन के बाद, ठीक है 64। ऐसे इस पे लिख दिया हमने। इस पे क्या करा, इस पे एक्सपेंड लिख दिया। आप जैसे लिखना चाहो आप वैसा लिख सकते हो। हमने इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया खाली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कहते हैं हम कैसे हम शॉर्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंड को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास मैंने फिर करा सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। हर इंटरफेस का स्टेटस चेक करने के लिए आप है कि नहीं है भाई, आप हैं देखो। भाई ये क्या आ गया, ये वाला और एड्रेस, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट। अब देखो ये क्या आ गया आपका, जो आपने एड्रेस दिया था इंटरफेस पे आके 2001 DB8, हमने खाली 00 मूव कर दिए .1 शॉर्ट एंड फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। ऐसे इस इंटरफेस के लिए दिया, ऐसे इस इंटरफेस के लिए लिख दिया। ओके, अब देखो मैंने बताया था ना, ये क्या लिंक लोकल एड्रेसेस है, जो आई whenever you will run command IPv6 enable। ओके, तो ये क्या होगा, हर इंटरफेस पे जनरेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा ये एड्रेसेस आपका, ये ऑटोमेटिक ही जनरेट होता है। ओके, क्योंकि लिंक लोकल एड्रेस है। लिंक लोकल एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, FE80 से होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज लिंक लोकल एड्रेसेस। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, नेक्स्ट वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड IPv6 एड्रेसेस, कौन सा होता है बताओ, वही आंसर बताओ। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है, आप बताओ मेरे को, ठीक है, कमेंट कर देना। तो इसका आंसर A B E है। C क्यों नहीं है, देखो इसमें G है, मैंने बताया था ना, हेक्साडेसिमल गोज इन IPv6 ओनली अप टू A to F। ये क्यों नहीं है ये सही आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक। इसमें डबल कौन 2 बार यूज कर लिया, देखो एक बार यूज कर सकते हैं हम, 2 बार यूज नहीं कर सकते। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एब्रिविएशन वर्जन ऑफ IPv6 एड्रेस बिलो, इसमें कौन सा है बताइए। पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। ओके, द करेक्ट आंसर इज दिस वन। व्हाई नॉट थिंक अबाउट इट, ओके, एंड लेट मी नो। Which of the following command must be used to enable a router to perform IPv6 routing? कौन सी कमांड हो सकती है बताओ। बताया था ना मैंने बताया था ना आपको, ग्लोबल मोड में चलती है। तो ग्लोबल मोड कौन सा हो गया, ये तो इंटरफेस मोड हो गया, ये भी इंटरफेस मोड हो गया। अब ये होगा क्या, ये होगा सर इस IPv6 यूनिका स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन है देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके CC एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है, what command would you issue on a router A so that traffic can be routed to router C? Select the best answer। अब इसमें कौन सा टॉपिक यूज हो रहा है, कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है पता है, स्टैटिक राउटिंग। कौन सी यूज हो रहा है, स्टैटिक राउटिंग यूज हो रही है यहाँ पे। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, IPv6 राउट लिखो आप, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस, उसके बाद एग्जिट इंटरफेस आपका। ओके, सो देखिए IPv6 राउट 2001 DB8, ये डेस्टिनेशन थोड़ी, हम डेस्टिनेशन क्या है ये, ये इसमें देखो सी में DB8 हमारा, फिर इसमें डेस्टिनेशन ये इधर का, ये थोड़ी हमारा डेस्टिनेशन, हमें यहाँ पहुंचना है, सी पे पहुंचना है, तो डेस्टिनेशन क्या होगा, ये होगा ये वाला नेटवर्क।
अब देखो डी देखो, हाँ इसमें सही दे रखा, देखो 2001 DBA2 चाहिए भाई स्लैश 64। अब देखो 2001 DBA2 नेक्स्ट हॉप भी ये दे रखा है। नेक्स्ट हॉप ये थोड़ी होगा भाई, नेक्स्ट हॉप क्या होगा इस राउटर का, ये होगा, यानी कि इससे नेक्स्ट हॉप मीन्स राउटर ए का किससे बात कर सकता है, इसी से बात कर सकता है। इसका आंसर होगा बी। देखो IPv6 राउट 2001 DBA2 64, ओके 2001 DB8 1 डॉट, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ओके। I will provide new video for IPv6. We will cover different topic in that one, okay. So for this video this is enough, so bye bye guys.